जनरली हम दोनों डिस्कस कर होते हैं पॉडकास्ट में अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स क्वेश्चंस जो तेरे इंस्टाग्राम से लिए हैं हमने बट आई थिंक यू हैव नॉट गॉन थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन मे बी अ फ्यू बट आज मैं ये सारे तेरे से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में पूछूंगा एंड आई वुड लाइक एंड आई विल ऑल्सो क्रिटिक एंड क्वेश्चन बिकॉज these are questions by budding creators or people who are just curious about this space, and I am also someone who has been trying to get into this space and trying to create content and put myself out, so I'm going to ask a lot of questions of my own also. We're not going to name कि कौन सा question किसने पूछा है to ensure there is anonymity, and yeah. We live in a world where everyone is either a content creator or wants to be a creator or knows a creator very close and near and dear to them or wants to गाली निकालनी है किसी क्रिएटर को. Apart from the last one, Or using creators for their own business. yes, or they're using creators for their own business. Or there are businesses who want to be creators, content creators, which is also Yeah. very New saying in the marketing industry that be a creator. be a creator. Your brand needs Needs to be a creator. creator. So this podcast, this episode, we're just going to Dive. We're just going to dive very deeply. Deep dive को कहते हैं deep, guys. We're gonna dive deep into what does it really mean to be a creator and how can one being anyone, do it for a very long time. We want to take in account authenticity, we want to take in account longevity, and we want to make sure that how can people actually fulfill जिनको create artist बनना है, how can they use a platform like Instagram or YouTube to reach people and for their art to reach people. And what we've done for this episode is that is to ensure कि we are not like he is not speaking from his point of privilege where he has been a creator for 5+ years and knows 10 years. I 10 would years, say yeah, 10 10 years. And is speaking from that point of view. Instead, what we thought is कि we let you guys ask questions कि exactly जानना क्या है कि ये कुछ भी आगे बता दे but that doesn't make sense to you, will not make sense to us. So we got on his Instagram, we put a nice paragraph to ask you guys to ask us questions, the questions that you want him to answer about this space. So basically it's just your questions, me asking, and बस जितना निचोड़ चाहूँगा उतना निचोड़ूंगा तुझे. मतलब मैं आंसर दूंगा. और कभी कभी क्या होता है ना, कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं और मतलब in general, But we are not selling a course. we're not, at the end of this episode there will be a link to no course because all of this is for free. And trust me, everything I've learned in the last 5 years of being famous and doing this for a living and 5 years of making videos and not having any income source, I've learned a lot of things. And Jatin, being someone who has seen me through all of it, knows if I'm bullshitting, knows if I'm saying is there truth to it, and he is in a position where he can critique it, challenge it, also add on it. So I think this conversation will be something that even I might learn a lot from. Yeah, because if anything, I am very besharam. Yes. I will call his bullshit out so if he's bullshitting. I'm going to try and answer all your questions with as much precision as I can. So let's go. Perfect. So everything that I ask you is going to be a question that has been asked by someone that is from your audience, but we will not just stop there. I will try to double tap on it as much as I can and जितना भी निकाल सकूँ information, because I also want to know a lot. Let's go. And I think हमने भी कभी ऐसे ढंग के बैठ के नहीं करी है. Like तूने मुझे बताया है कि अच्छा ऐसी videos डाल दे, ये चलेगा वो चलेगा, but I don't think we've had this कि like I have asked you questions ढंग से. So I'm going to use this Jatin, time. by the way, is a DJ and he creates DJ content. So if you want to check it out, that's quite crazy. Chalvi, Jatta. Okay, let's start. So first question, I really loved this question, is that how do you handle friendships and relationships when you're always online? I think what they try to also mean is that how do you maintain that authenticity, like you are being a friend in one moment and in the other moment you are being an extroverted, hi guys, everything, putting online. So how do you maintain energies and authenticity and similarities between your two lives? I will answer this. I think मेरे को thought आ रही है सबसे पहले इस question को सुन के, is that कि how do you
how do you keep your identity and who you are consistent offline and online, Online, yeah. if that's what this question translates to. And I think the very real answer to that is that you don't, not all the time, for sure. मतलब तुम, because जब तुम वीडियो बना रहे हो ना, तुमको लगता है कि अच्छा, मतलब दिखने में लगता है कि तुम सबके लिए बना रहे हो, लाइक हज़ारों लोगों के लिए, बट what it really is you and a camera. And that's a very vulnerable space you're in. You are more true to that camera than you are to maybe even your parents or like your girlfriend or your friends. So you're in that moment, it's just you and you, like a version of you that you're trying to create and put out and everything. So that is you trying to be something that you want to be. Around your friends, you're just someone who you are. You're not trying to be someone. तो वो consistency नहीं रहेगी, right? And hopefully if you're around people who are supportive, who are nice and understanding and thoda sa mature, you will see that as you are growing as a person and as an artist online or wherever you're putting your craft in the world, you will see those people accepting you for the change and the growth. Right? And they will also call bullshit ki bhai, this is really not you sometimes, or like, or they'll have a conversation. So I think वो that's a like a step by step की, मतलब एक पहले ऊपर जाता है, फिर दूसरा उसको catch up करता है, फिर कभी कभी दूसरा ऊपर जाता है, and then you're like, oh, maybe your friends tell you that, you know, you should put this part of your life on the internet because this is really fun part of you. Like you don't see it, okay, you're a comedian but you cook really well. Sorry, light चली गई थी guys. It's just kindergarten wisdom but a little on budget. Yes. परफेक्ट. सो व्हाट यू हैव टोल्ड, जो तूने अभी समझाया, वो ये बोला है कि ओके डिफरेंस रहेगा, व्हाट यू आर ऑनलाइन, व्हाट यू आर ऑफलाइन, इट इज़ समवॉट डिफरेंस तो रहेगा. इट इज़ स्टूपिड टू एज्यूम कि भाई जैसे तू ऑनलाइन है वैसा ही तू ऑफलाइन भी रहेगा. एंड with time, people around you, your friends, and every kind of relationship that you have, people will start understanding the difference and acknowledging the difference and being okay with that. कुछ ओके होंगे, कुछ ओके नहीं भी होंगे. Which is also okay. Which is how it is. ओके होंगे या नहीं होंगे तो लाइक पर्सनल उस पे है, बट देयर विल बी पीपल जो कहेंगे अच्छा भाई वीडियोस में तो तू कूल बनता है या बनती है, हाँ मतलब गेट रेडी विद मी वगैरह कर रहे हैं भाई, अब तो तू सेलिब्रिटी है, ये वाले लोग भी होंगे. दैट्स हाउ यू like start eliminating a few friends. That's a different conversation. Because personally also I remember जब मैं कॉलेज में था, रिमेंबर जब मैं पटियाला चले गया था एंड यू वर बैक इन चंडीगढ़ एंड तू कर रहा था, एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट, एंड 2015 onwards, 2015 until 2019, and I think 2020 is where actually you started getting recognition एक अच्छे quantum पे. And उस time I don't know how true this is, but from my perspective तू effort भी बहुत ज़्यादा डाल रहा था, because not कि तू ज़्यादा काम कर रहा था, तू हर तरह का काम कर रहा था. You were trying different things because you were also trying to figure out कि what works for you and not. कॉमेडी भी कर रहा था, व्लॉग भी कर रहा था, पॉडकास्ट भी कर रहा था, सब कर रहा था. But it is also the time जब हम दोनों थोड़े से डिस्टेंस हो गए थे because of हमारी डिफरेंट लाइन थी, एंड यू नो दोनों की लाइफ में थिंग्स वर गोइंग ऑन एंड वी इतना नहीं मिलते थे एंड ऑल. तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को याद है कि मेरे दिमाग में व्हाट आई न्यू ऑफ यू, बट इस डिस्टेंस में ऐसे बैकग्राउंड में जो इमेज तेरी चेंज होते जा रही थी, दैट वाज आल्सो बिकॉज मैं देखो ऑनलाइन ज़्यादा दिख रहा था. लाइक आई रिमेंबर आई वाज वेरी हैप्पी, तेरा मेंस एक्सपी पे रघु के साथ एक वो आया था, दैट वाज लाइक योर फर्स्ट ब्रेक, एंड उसमें जो तू जैसा था, सो स्टार्ट समवेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कि लाइक एक होता है ना कि इन्फ्लुएंसर्स, टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ हार्श ट्रूथ, लाइक एवरीवन फॉर अनकॉन्शियसली आता है कि इन्फ्लुएंसर को थोड़ी सी बैड लाइट मिलती है, तू तो इन्फ्लुएंसर बन गया टाइप्स वाली बात है. तो आई कुड सी कि तू उस तरफ मूव कर रहा है, बिकॉज मैं सिर्फ देखो ऑनलाइन देख रहा था, बट इवेंचुअली आई वॉज ऑल्सो एबल टू रियलाइज कि ओके ये तो दो डिफरेंट हो गए. एंड अभी भी आई रिमेंबर जब हम घर में बैठे होते हैं, लाइक अब तूने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्नॉलेज करना शुरू किया है कि लाइक कैमरा पे जितनी तेरी एनर्जी दिखती है वर्सेस रियल लाइफ में जितनी तेरी एनर्जी है, इट इज़ लाइक माइल्स अपार्ट. सो आई थिंक डिफरेंस थोड़ा नहीं है, बहुत है. डिफरेंस बहुत है, बट इट इज इट्स अनदर डायमेंशन ऑफ एग्जैक्टली अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, और उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एक
डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी आती है. सो जब मैं चिल कर रहा हूँ घर पे अपने दोस्तों के साथ तो मैं उसमें कर रहा हूँ, तब मैं हा ही नहीं कर रहा कॉन्स्टेंटली, राइट. एंड वो क्योंकि ऑनलाइन तो फिर लोग एक वो डालते हैं ना कि एक यही है, मतलब एक बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट में कवर कर देते हैं बंदे को. एंड तेरा कंटेंट तो मोस्टली है भी कैरेक्टर लेड, तो यू आर नॉट प्लेइंग योरसेल्फ I'm not मोस्ट ऑफ द टाइम्स. Yeah. सो उसमें तो 100% डिफरेंस आएगा ही. सो आई थिंक द आंसर इज येस, देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस बिटवीन हाउ यू are with your friends and in your relationships, and how you are online. How to balance is just accepting the difference. Accepting the difference and also मतलब उस प्रोसेस में तुमको बहुत चीज़ें पता चलेगी अपने दोस्तों के बारे में भी, कि कौन राइड और डाई है और कौन थोड़ा सा मोमेंटरी है. और या दैट्स ग्रोथ. Yes. How do I get rid of that hesitation of posting stuff I like that makes me look slightly vulnerable in front of my family? And I will add friends also here, everyone that knows you. I write songs and music comes from what you feel at that moment, but it is scary to even think about recording and posting. Half of the time, it's not because of society in general, but because of my extended family or the people that I know. कि वो लोग क्या सोचेंगे? So really had to ask someone who is making it look easy, but I know how hard it is. Please don't share this response because I'm shy even about people knowing that I replied here. ये मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा था, मेरे को बहुत बहुत रियल क्वेश्चन है. दिस इज एज रियल एज Just to add it, जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी ना, फर्स्ट वीडियो, एंड जब मैं सोच रहा था कि मैं डालूंगा, मैं अपनी फॉलोअर्स की लिस्ट खोलता था और मेरे दिमाग में सिर्फ ये आता था कि लाइक ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं ना, कि अच्छा इस फेज ऑफ लाइफ में दीज पीपल वर देयर, इस फेज में, कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. लाइक उनके सामने मेरी डिफरेंट इमेज है, स्कूल वाले दोस्त अलग सोच रहे होंगे, कॉलेज वाले अलग. एंड मैं बार बार जैसे कोई लाइक करता था मेरे दिमाग में आता ये क्या सोच रहा होगा ये. बट आई थिंक ओवर टाइम इट गेट्स ईजी. बट आई डोंट थिंक मेरे लिए हाउ इट वॉज पॉसिबल इज मेरे आसपास के लोगों ने बहुत पुश किया. सो इट वॉज ईजियर फॉर मी बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ क्रिएटर फ्रेंड्स कि डाल दे डाल दे डाल दे. बट आई कैन इमेजिन अगर मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स ना होते तो आई डोंट थिंक मैं कभी आई वुड हैव गॉटन दैट करेज, स्पेशली एट दिस एज. क्वेश्चन क्या है इसमें कि हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस थॉट कि लोग क्या सोचेंगे, स्पेशली जान पहचान वाले लोग. जान पहचान, जजमेंट, फियर ऑफ जजमेंट कैसे करना है. यार इसमें ना दो एस्पेक्ट है. एक है द फियर ऑफ जजमेंट यूजुअली कम्स व्हेन यू योरसेल्फ जज अदर पीपल ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, बिकॉज दैट्स अ रेफरेंस पॉइंट यू हैव ऑन हाउ ह्यूमंस बिहेव. मतलब मानो ना मानो हर बंदा जज करता है. और स्पेशली जिस बंदे को सबसे ज़्यादा फियर है ना कि आई एम अफ्रेड पीपल विल थिंक आई एम दिस, दे हैव ऑलरेडी डन दैट फॉर समवन एल्स. दे हैव डन दैट एंड वो दैट इज द फियर दैट दे आर बैटलिंग विद कि मैं करता हूँ तो, क्योंकि दे डोंट नो कि मेरी मासी के दिमाग में चल रहा है, मेरे फ्रेंड के दिमाग में चल रहा है. दे नो दैट देव थॉट अबाउट दिस इन दिस लाइट एंड पीपल विल थिंक ऑफ मी इन द सेम लाइट. सो दैट इज आई थिंक नंबर वन. व्हेन यू एक्नॉलेज दैट then you're able to rationalize it for yourself at least. कि तुम अपने आप के चल मैं सोचता था, but when I did think this about this person, it didn't affect this person really. And maybe this person is doing good or bad, but my judgment did not affect this person directly. And also मैंने भी कभी इसको directly जाके confront करके नहीं बोला कि ये क्या कर रहा है, ये कर रही है. So I'm just saying कि you will understand कि this fear of judgment, तुमको लग रहा है कि फियर ऑफ जजमेंट विल बी कि मेरे को डायरेक्टली आगे कोई एक तो उल्टी सीधी बात बोलेगा, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल, और हुआ मेरे साथ भी हुआ है. होगा 100%. बट अगर 100 लोग जज कर रहे हैं, अगर 100 लोग देख रहे हैं, 50 लोग जज कर रहे हैं, 50 लोग जज कर रहे हैं, 5 लोग मेरे ख्याल से तुमको कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे. एंड आई थिंक उतनी थिक स्किन तो तुमको डेवलप करनी पड़ेगी, स्पेशली व्हेन यू डूइंग एनीथिंग इन पब्लिक. वो तो क्रिएटर की बात है, वो तो तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अपना, कुछ भी कर लो, है ना. बट इट्स जस्ट क्रिएटर, आई थिंक इट्स वेरी आउटवर्ड, आउट देयर, वो एकदम स्टेज फिर होता है ना. दिस इज ऑनलाइन, लाइक इंस्टाग्राम इज नथिंग बट अ स्टेज. इन्फ्लुएंसर वाला वो आ जाता है ना, एक तो अच्छा भी इन्फ्लुएंसर. अब इन्फ्लुएंसर अच्छा, अब तो तू हाय गाइस वेलकम टू माय व्लॉग टाइप्स हो जाएगा. फॉर सम रीजन ऐसे ही होता है. ऑल्सो फॉर इन हर केस स्पेसिफिकली, एंड आई कैन इमेजिन जैसे अगर वो लिख रही है अपने गाने, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल एक्ट्स ऑफ creativity is to write a song. Maybe she's writing about an ex, or maybe she's writing about her relationship with her parents. That's what real songs are about. At least जब start कर रहे थे तो pure passion होता है, तो like doesn't mean कि अच्छा गाना है बुरा गाना है. It's just like that's what she's writing about. But यार अब इसमें ना बहुत क्लीशे सा वो होएगा. मेरा थॉट तो ये है कि
the cost of being great is okay looking stupid. That's the cost of it. If you're willing to pay the cost, then you can make it. If you're not willing, that's the club की entry fees है. If you want to be in a club where everyone's a creator and everyone's successful, to get into that club, there's an entry fee, and that entry fee is that you're okay with looking stupid to your friends and your parents and your family. And I think even like yes, there is कि अच्छा तुम creator बन जाओगे, तुम successful हो जाओगे. Even if you let go of that thought कि maybe like that is बहुत बाद की बात की you make it, you become successful creator. उससे पहले कि अगर तुम इस क्वेश्चन पे पहुंच गए हो कि ओके लोग क्या सोचेंगे, मीन्स कि तुम खुद अगर इफ दैट वाज नॉट द केस यू वुड हैव बीन क्रिएटिंग समथिंग. वो तो स्टेज पे होगी, तुम अपने आप से टर्म्स पे आ गए हो. तो आई थिंक यू आर जस्ट डिप्राइविंग योरसेल्फ ऑफ हैविंग दैट फन. कितनी मुश्किल से तो ये मोटिवेशन आती है लाइफ में कुछ करने की. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जो क्लब है इट्स अ क्रिएटर क्लब. हाँ, एक पार्टी चल रही है और बहुत सारे क्लब्स हैं, कहीं पे सीएज हैं, कहीं लॉयर्स हैं, और एक और क्लब है जहाँ पर ये है, सबकी अपनी अपनी फीस है. इस वाले स्पेसिफिक क्लब की बस ये फीस है. अगर तुमको अंदर जाना है क्रिएटर्स, like you want to be able to call yourself a creator and be amongst creators, and एक होता है यार, usually जैसे मेरे को भी कोई DM करता है ना, and I can see that ये बंदा genuinely create कर रहा है, doesn't matter how many followers they have, like I have a respect towards that person, I have a sense of that person is having fun, they are doing what they're putting themselves out there यार. इससे ऊपर कुछ भी नहीं है. Especially music में, again like everything aside, music जो बंदा खुद बना रहा है, I think that's the epitome of being a creator and an artist. So the price you pay, the fee, it's like क्या equipment cost होती है, वैसे ही एक ये entry cost है, which is you have to make peace with looking stupid, and for a while you have to make peace with it कि ठीक है मैं थोड़ा बेवकूफ़ लगूंगा या लगूंगी, मेरे को लोग cringe भी समझेंगे, unfollow कर देंगे तुम्हारे दोस्त जिनको तुम्हें लगता था तुम्हारे colleagues दोस्त, होता है ये सब. and I would say it's a fair and actually काफ़ी good deal है if the other part is never fulfilling your dream of writing and putting your art out there. It's a great trade-off. Okay, do I want to look stupid in front of my Masi who sees me like 3 times a year, or do I want to put out a music that I've always wanted to? feeling fulfilled. वो निकालना है. वो 4 लोग देख के उसको appreciate करें, but that feeling is मैंने डाल दिया यार. क्या मासी 3 बार ताने मार देगी कोई चाची या कोई ताई तेरी, कुछ नहीं होता भाई. Crazy. Next question. You might not read this well, but I have been posting for 5 years and haven't gotten nowhere. Can you please, why पे खत्म हो गया, but I can understand the question would be, can you please help me? 5 साल से पोस्ट कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है. Am I doing something wrong? वो तो तू नहीं बता पाएगा obviously without seeing the content and understanding. I think the better would be, what kind of questions should I ask myself to figure out what am I doing wrong, or where should I pivot and how to analyze? That is a great question. I think pick up a pen and paper, ठीक है, and start analyzing it as if you do this like this is a job. This is a different job. I think या तो तुम एक मोमेंट में या तो क्रिएटर हो सकते हो या क्रिटिक हो सकते हो, ठीक है. Your job as a creator is to just to create. That's it. No insights, nothing. This is what I wanted to create. This is what I created. That's it. उसके बाद जो क्रिटिक आएगा तुम्हारा, that is also important. And you sit down and you critique yourself. If in case there's a creator that you can reach out to who's maybe slightly more famous than you, or कोई भी कभी भी reply कर देता है, it's always good to reach out. Reach out to someone, see if you can get feedback, and never take feedback from people who don't know better than you. Because बहुत होता है कि सब लोग अपना opinion देते हैं, but I don't think that opinion really matters. It's a good quantitative analysis, not a qualitative analysis. मतलब ठीक है तुम पोल करा लो, तुम्हारे दोस्त हैं 10, उनसे पूछ लो कैसा लगा, but I don't think that's a technical feedback that you can work on. You need feedback from people who you know better than you. So if you can find those people, great, take that feedback. If not, try to see कि अच्छा ये videos better perform करिए than average, ये videos worse perform करिए than average. जो better perform करिए than average, you want to be able to find a pattern. For example, I learned मेरी videos में
व्हेन आई एक वीडियो में मैं रैंडमली अपनी हम गोविंद और मैं हंस रहे थे किसी वीडियो में एंड मैं काटना भूल गया वो लाइक मेरे से लाइक आई वाज जस्ट लेजी मैंने वो काटा नहीं वो वाला पार्ट एंड आई रियलाइज थ्रू कमेंट्स दैट पीपल रियली एंजॉयड दैट पार्ट कि अगर हम जेन्युइनली फन कर रहे हैं बिकॉज एट द टाइम एवरीथिंग वॉज वेरी प्रोफेशनल एंड रील्स और द फर्स्ट रील्स और शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट में ना वो अनप्रोफेशनलिज्म आ रहा था पहली बार ठीक है आई स्टार्टेड डूइंग रैंट्स वो भी बड़ा अनप्रोफेशनल सा था कि मैंने कैमरा उठाया और बोलने लग गया सो दिस अनप्रोफेशनलिज्म इन डिजिटल कॉन्टेंट वॉज a very new thing. So ये हंसी वाला part people really started enjoying it कि like oh we are laughing at ourselves, you are laughing with us. So it's a whole community thing. And then we realized that we want to keep this. कि अगर हमको हंसी आ रही है we will keep it. ठीक है that's a small thing that we picked up. And भाई अभी क्या 5 साल हो गए मेरे को वैसी वीडियो बनाते हुए 5 साल बाद भी वो सेम चीज़ हो रही है अभी भी people appreciate the same exact thing that we are having fun while making videos. That's number one. Other things that I've learned, मेरी personal learnings हैं, but जो framework I've used is the same framework, is to go through the top performing videos, see कि कहाँ पर like what insights you can draw. YouTube करो, ChatGPT करो कि how do I analyze my content और ये सब बहुत easy है ये करना, like how to analytically see your content. Some learnings for short form content would be that you want a great hook. You want to tell a good story first of all. What is a good story? You want to hook audience in the starting and tell them that this is what to expect कि इस वीडियो में ये expect करना है तुमने ठीक है you do that by a title ऊपर the thumbnail and the first 5 seconds these 3 things define your hook ठीक है उसके बाद once people know what to expect you wanna especially in comedy this works in comedy but also a little bit in fashion a little bit in lifestyle कहीं पे भी तुम स्टोरी बता रहे हो किसी तरह की यू वॉन्ट टू क्रिएट अ स्मॉल प्रॉब्लम और अ ट्विस्ट वेर पीपल जस्ट डोंट नो कि ये क्या हुआ बिकॉज जब एक बार प्रॉब्लम आ गई ट्रिगर हाँ लाइक मे बी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ अबाउट स्कूल किड्स ऑन अ वेकेशन स्कूल वेकेशन नहीं जाते जब बस जाती थी हमारी शिवालिक हिल्स पे हमको लेके जाते थे अगर वो है वहाँ पर उसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गई कि मेहुल और तेजस 2 कैरेक्टर्स हैं उनकी लड़ाई हो गई बिकॉज दे वांट टू सिट नेक्स्ट टू अ गर्ल दैट दे बोथ हैव अ क्रश ऑन ठीक है नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम आई हैव हुक्ड यू स्टार्टिंग में कि ओ दीज आर 2 कैरेक्टर्स यू वांट केयर अबाउट बिकॉज दीज इन अ वे रिप्रेजेंट यू लाइक स्कूल में हम जाते रेलेवेंस है एवरीवन हैज बीन अ स्कूल किड सबने अपना दे सॉ अ लिटिल बिट ऑफ देम इन दैट कैरेक्टर देन देयर इज अ प्रॉब्लम नाउ it's not their character's problem, it's the viewer's problem because they already saw themselves in that character. So अब वो उनकी problem है. So now they want a resolution and you want to create as big a problem as you can so that characters जब वो solve करे ना तो तुमको और अच्छा लगे. जितनी बड़ी problem उतना ज़्यादा easy solution. So you want to create a good story and this is like a very basic way to create a good story, which is to create a problem and then give a solution. And another thing is that लोग क्या करते हैं एडिट करते वक्त बहुत तेज कट्स लगाते हैं एंड दे थिंक लाइक क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट है अटेंशन स्पैन छोटा है तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दूंगा उतना ज़्यादा होएगा बट यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो इन बीट्स कि लाइक 4 जोक्स एंड देन यू वॉन्ट गिव स्पेस टू ब्रीथ कि किसी को हंसी आ रही है दे कैन रिलीज दैट एनर्जी एंड देन दे आर रेडी फॉर अनदर जोक दे आर रेडी फॉर अनदर वो दीज आर स्मॉल थिंग्स which work in comedy, but these also work in every other format. Fashion में you wanna be able to like अगर तुम हर वक्त ही हर एंगल से कट कर रहे हो किसी को ना आउटफिट समझ आता है ना कुछ समझ आता है. अ ग्रेट वीडियो और उसमें यही फ़र्क होता है कि you naturally feel like तुमने वीडियो समझ ली. तुम पता नहीं चला एडिट हुई है वीडियो. You never see the cuts. They just come to you. But now I'm just trying to think from the perspective of जिसने क्वेश्चन पूछा होगा कि this is someone who has been creating for 5 years. That's a lot of time, right? And question पूछा है तो hence there is some problem. And अभी तूने बहुत सारे तरीके बताए where one can analyze and see कि अच्छा उनकी स्टोरी टेलिंग सही है कि नहीं है and कौन सी पैटर्न्स वगैरह रिकॉग्नाइज करना. But do you think people like these जिन्होंने बहुत सारा एफर्ट डाल दिया है बट रिटर्न नहीं मिला है शुड गो टू दोज कोर्सेज दैट पीपल अ लॉट ऑफ पीपल सेल ऑनलाइन अबाउट बीइंग अ क्रिएटर एट्सेट्रा. यू थिंक अ मेंटोर मतलब
I'm saying for people who do not have a creator friend or do not know anyone who has done it better than them. So do you think these workshops or they are of any value at all? Like I don't want to despise on these workshops etc. I just want to understand कि मतलब क्या वैल्यू कोई ले सकता है उनसे. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर जर्नी में तुम डिफरेंट वर्कशॉप्स डेफिनेटली वो कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. स्पेशली इतने जब आज के टाइम में लाइक देयर सो मच क्राउड, इन्फॉर्मेशन, सो मेनी पीपल. अब द प्रॉब्लम इज कि मैं वर्कशॉप लगा के आता हूँ, अब मैं कंटेंट बना रहा हूँ सिर्फ जो मैंने वर्कशॉप पे सीखा है उसका, कि हाउ टू बिकम अ क्रिएटर. मैंने अपनी नीश यही बना ली. लाइक मेरे को लगता है एज समवन हु इज स्टार्टिंग टू बिकम अ क्रिएटर, अगर तो मेरा दोस्त ना होता मैं शायद तब भी कोई कोर्स ना लेता, सिर्फ इसी थॉट से कि क्या ही बता देंगे, लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑलरेडी. ग्रेट एपिक क्वेश्चन. इसमें ना 2 पार्ट्स हैं. ठीक है. एक है एज अ क्रिएटर, किसी भी क्रिएटर, यूनिवर्सल क्रिएटर एप्लीकेबल है ये. 1, तुम क्या कहना चाहते हो. 2, तुम कैसे कह रहे हो. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज अ यूनिक थिंग. इट्स अ एक्सपीरियंशियल, ओनली जतिन कैन से दिस थिंग इन जतिन्स वे काइंड ऑफ थिंग. इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर थिंग्स और क्रिएटर जिसको तू देखा होगा, मिला होगा, सब कुछ क्या तूने कंटेंट कंज्यूम करा है. बट दिस इज व्हाट जतिन वांट्स टू से थ्रू हिज म्यूजिक, थ्रू हिज कॉमेडी, थ्रू हिज fashion, whatever it is. Personal statement. Second is how you say it, which is the technical part. तेरे को वीडियो एडिटिंग कैसी आती है, तेरे को म्यूजिक, तेरा आवाज़ कितनी अच्छी है, तो कैसा गाता है, ऑल ऑफ दैट. मोस्ट कोर्सेज हेल्प यू विद द सेकेंड पार्ट, द टेक्निकल स्टफ. द टेक्निकल स्टफ. यूट्यूब पे अगर डालना है तो ये ऐसी ऑप्टिमाइजेशन होती है, थंबनेल्स में ऐसा यूज़ करो, कैसे देखना है, हाँ, एनालिटिक्स को कैसे देखना है, हाउ टू इम्प्रूव योर वीडियोस. ये सेकंड पार्ट को बेटर करने के लिए, बिकॉज कोई स्कूल नहीं है ना इसका. तो ये इट्स लाइक लॉ स्कूल में जाके तुम बेटर लॉयर बन जाओगे, तुमको लॉ समझ आ जाएगा, तुम कोर्ट में कैसे बहस कर पा रहे हो तो तुम दैट्स यू. लाइक फॉर इन योर केस ये सारा स्ट्रक्चर हुक मे बी स्ट्रक्चर भी बना के दे देंगे, बट तेरी जोक कैसा है, हाँ, वो जो पर्सन, वो तो नहीं वो बता पाएगा. सो यू वन इज हाउ वेल यू नो योर क्राफ्ट. उससे इंपॉर्टेंट है वो क्राफ्ट को तुम यूज कैसे कर रहे हो टू से व्हाट यू वांट टू से. सो बिफोर टेकिंग द डिसीजन कि मेरे को ऐसे हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम श्योर किसी लोगों को होगी, इसकी प्रॉब्लम किस साइड है. अगर टेक्निकल स्टफ कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स और हाउ द एनालिटिक्स टैब वर्क्स और ये हुक होता क्या है, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, देन यस सीक हेल्प. बट इफ़ यू थिंक कि ये सब तो मुझे पता है बट मेरे जोक्स नहीं लैंड कर रहे, या मेरा नहीं, इवन लैंडिंग ऑफ जोक इज ऑल्सो अ क्राफ्ट. द क्वालिटी ऑफ द जोक्स रैदर. यार वो क्वालिटी भी नहीं है. इट्स लाइक गंदा जोक तो गंदा ही होगा, गंदा जो गंदा होगा, बट राइटिंग अ जोक इज अ लाइक देयर आर, लाइक मैं हूँ जैसे, आई एम अ गुड राइटर ऑफ अ जोक, आई कैन राइट अ गुड जोक. मैं आई एम नॉट अ फनी पर्सन कि मैं हा ही हूँ कॉन्स्टेंटली करता हूँ, बट आई नो मेरे को लिखना आता है, मुझे वो वीडियो में परफॉर्म करना आता है. नाउ द परफॉर्मेंस इज अ क्राफ्ट, द राइटिंग इज अ क्राफ्ट. वॉट इज नॉट, अब वो क्रिएटर मास्टर क्लास से जोक लिखना कोई नहीं सिखाएगा. नहीं, जोक लिखने की मास्टर क्लास है. आई एम सेइंग ये सब सीखा, द क्राफ्ट बिट, ये क्राफ्ट है, ये सीखी जा सकती है. एनीवन कैन नो, लाइक कैन लर्न हाउ टू राइट अ जोक. ठीक है. इंस्टिंक्टिवली मुझे किस चीज़ पे जोक लिखना है इज द पर्सनल वॉइस. इंस्टिंक्टिवली कि ये मुझे लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों की है, कि आई डोंट थिंक, जैसे एक शो है कर्ब योर एंथुसियाज्म, उसमें फर्स्ट एपिसोड है लैरी डेविड का, उसमें ना जैसे लड़के जब बैठते हैं, जो जीन्स पहनते हैं थोड़ी सी खुली होती है, तो यहाँ पे उनका वो नहीं बन जाता, वो एक बल्ज सा आ जाता है. तो दैट एपिसोड इज अबाउट दैट बल्ज, और दैट्स अ यूनिक वॉइस. अब इस बल्ज पे क्या जोक मारा है, that's a craft bit. Writers can write a joke on a bulge, but to observe that and to put it in a narrative where it feels like wow, like इसकी वजह से उसकी डेट खराब हो रही है because you think this guy is a pervert on that date. Like this is the part where what is your unique voice. I think a lot of people lose this because इतने सारे creators आ गए, इतने सारे successful, इतनी सारी information overload हो गया है कि they think there is a method to madness. There is a method to madness, but some kind of madness is going to be there. Yes, 100%. For you to, मतलब वरना तो तेरे और 4 other creators में difference ही क्या है? तो मेरे को इस भाई का क्वेश्चन है जो उसको अगर थोड़ा सा सॉर्ट करना हो कि भाई अगर तू 5 साल में यू वांट टू रीअसेस एंड अंडरस्टैंड, ब्रेक ले ले 1 महीने का, जस्ट अंडरस्टैंड एंड रीअसेस कि यार
प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बेटर नहीं हो रहा हूँ अपने स्किल में. मेरे को स्किल इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा स्किल आउटडेट हो गया, देन यू वोंट बी एबल टू कीप अप विद द वर्ल्ड. और इज इट दैट आई एम नॉट सेइंग समथिंग दैट्स ओरिजिनल? That is a bigger problem. Skill is learnable. If you're not saying something that's original or something that's unique to you or your experience, then you will always feel कि यार I'm not, मेरा कुछ चल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा. But yeah, but anyway, a course or like a mentorship or anything I feel could be helpful. Not promoting any courses here, but I'm just saying that it's not a bad shout. What do you do when you feel creatively burnt out? अब तूने बोला कि अगर मेरी स्किल लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट क्वेश्चन और कि पिछली बार में कि लाइक मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ या मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ. माई ओरिजिनलिटी कम्स फ्रॉम माई क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी इज़ यूनिक टू यू. और मुझे लगा कि मैंने सारे आइडियाज़ यूज़ ही कर लिए हैं. लाइक अब और क्या करूँ नया, सब तो कर लिया. आई एम श्योर वो स्टेज आता होगा. 100%. तू 10 साल से जोक्स लिख रहा है, लाइक कितना सेम टाइप का कंटेंट बना लेगा, कितना क्या कर लेगा. लाइक आई एम श्योर तेरे को कभी कभी लगता होगा कि 100% यार. आई थिंक वो क्रिएटिव बर्नआउट ना यार वो ना क्रिएटिव बर्नआउट इज जो जितना मैं समझाऊँ क्रिएटिव बर्नआउट को, इट्स योर बड़ा ही वो ट्राइट वे ऑफ सेइंग इट है कि इट्स योर इनर वॉइस टेलिंग यू दैट यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ मोर. क्रिएटिव बर्नआउट हैपन्स व्हेन ईदर यू आर डूइंग समथिंग दैट्स टू ईजी फॉर यू. तो बहुत ईजी हो गया है, सो यूर क्रिएटिवली यू आर नॉट सेटिस्फाइड. लाइक मैं यही कर रहा हूँ, मैं लाइक अब मेरे लाइक योर माइंड इज लाइक शट दिस डाउन. आई वांट टू बी एबल टू क्रिएट समथिंग दैट्स इवन बेटर. वो तो हर क्रिएटर के होता है. मुझे और बेटर करना है, मुझे और बेटर करना है, मुझे और बड़ा बनाना है, मुझे अब शो बनाना है, मुझे अब ये लिखना है. सो यू वांट टू बी एबल टू dial down your expectations that you have for yourself, set the bar a little lower than you do for yourself. I think, sorry to interrupt, I think अभी जैसे तू बोल रहा है ना, लाइक बहुत ऐसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, लाइक दिस इज़ द वे. आई एम श्योर एंड एवरी वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट बहुत surface level. Can you instead give me an example of the last time you felt like this and what exactly you did जिससे तू कर पाया figure out? Just an overall. मेरा प्रोसेस, मैंने एक प्रोसेस ही बना रखा है जब मुझे क्रिएटिव बर्नआउट फील होता है. और मुझे अभी कुछ टाइम से नहीं हुआ है बिकॉज मेरे को अभी बाकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से डील कर रहा था. बट अभी लाइक जो प्रोसेस दैट आई फॉलो, जब मुझे ऐसा लगता है ना मेरे आइडियाज़ ही नहीं, मैं बंद कर देता हूँ काम करना. दैट्स अ वेरी प्रिविलेज थिंग टू डू. बट मैं उस एस्पेक्ट में क्रिएटिविटी बंद करता हूँ एंड आई ट्राई टू डू थिंग्स दैट आर क्रिएटिव बिकॉज लाइक आई फाउंड दैट आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. आई एम नॉट अ कॉन्टेंट क्रिएटर. First, I'm a creative person. So, as a creative person, मेरी needs है to create something that I am actually proud of. वो बात नहीं कर रहे थे हम पिछले एपिसोड में कि create things for its own sake. I feel like जब तुम बहुत देर तक वो नहीं करते हो ना, वो अंदर से बहुत गंदा लगने लगता है. You feel dirty as a creator. So, I will start doing spray paint वाली चीज़ें. मुझे पता है मुझे पसंद है करनी है. Like my mind is in a meditative state. अगर मैं कुछ spray paint कर लेता हूँ या कुछ DIY कर देता हूँ, कुछ तोड़ के बना लेता हूँ, like all of this, like handy stuff. So this helps me. Journaling 100% helps. क्योंकि you want to be able to एक बार ना refresh सा चाहिए होता है दिमाग को कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं good enough नहीं हूँ. Is it even funny or is it even like good what I'm doing? ये सब चीज़ें you want it on paper. So you can see it and you want to be able to have a conversation with it कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है दिमाग में. And I think ये ना it's just something you have to wait out. Like ऐसा नहीं है, कोई fix नहीं है इसका, but you have to wait out. In that waiting period, you can re-energize yourself कि whenever you feel, जब भी वो ट्रिगर आएगा ना कि अब रिस्टार्ट हो रहा है. जिसने भी क्रिएटिव बर्नआउट फील करा है उसको ये पता है कि क्रिएटिव बर्नआउट धीरे धीरे फेड अवे होता है. और जब वो फेड अवे का पास होता है ना टाइम, देन एकदम से कुछ इंस्पिरेशन या आइडिया आता है, देन यू स्टार्ट मेकिंग इट अगेन. या एक वीडियो चल पड़ती है, या फिर तेरे साथ भी हुआ होगा अभी जैसे तू वीडियोज़ बना रहा है कि एक वीडियो चल पड़ी है, देन यू ऑल एकदम से यू हैव मोटिवेशन टू डू इट. सो दैट्स एन एक्सटर्नल मोटिवेशन दैट्स कमिंग. कभी कभी इंटरनल भी आती है कि यार मेरे दिमाग में ये आइडिया जा ही नहीं रहा है. लाइक मेरे को ये ट्रांजिशन बनानी है, फिर ये एडिट ट्राई करना है. मैंने कहीं देखा मेरे को करना है. समटाइम यू सी समथिंग एंड यू लाइक फक, आई हैव टू ट्राई दिस, एंड यू ट्राई इट, देन मन एकदम से ट्रिगर हो जाता है. ऑल यू वांट टू डू इन दैट वेटिंग पीरियड इज दैट यू वांट टू री-एनर्जाइज योरसेल्फ विद small creative acts that might not directly influence your craft, but small creative acts that make you feel like you're not disowning your creativity.
you're not अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता रील्स पे तो मैं क्रिएटर ही नहीं हूँ. Because that's a very depressing conversation you can have as a creator. But ठीक है, मतलब great answer. But now I just want to understand if there is any, what difference it is in this process from how you acted right now versus when, because when I hear right now ना, अभी तूने बहुत सारी चीज़ें बोली and तूने mention भी किया, it is coming from great privilege that I can do all of this, that you can take a break and you can set process, you can do DIY, like you can channelize your energy somewhere else and come back to it because your work allows you, and the years of work that you have put in allows you to do that. From my perspective, how does is ki, okay, this is a structure of a master and I'm sure this is going to help a lot of people, but is this process any different from how this process was when you were amateur and constantly in seek of like that drive hoti hai na, I'm not going to call it desperation, but you understand what I'm trying to call it, like that drive that is there कि अच्छा काम करने वाली जो बहुत ज़्यादा होती है starting में 100% भाई. when you have nothing. Very good point. If I was to give myself this advice, मतलब जब मैं नहीं फेमस था या फिर जब मेरे पास नहीं था ये, तो it would be the exact same but with a little more empathy that कि भाई तेरे को वेट आउट तो करना ही पड़ेगा, वेट आउट तो करना ही पड़ेगा. सो दैट देयर इज नो गिल्ट इन वेटिंग आउट. जनरली ना वो जाता है कि टाइम थोड़ी वेस्ट कर सकता हूँ मैं. व्हाट यू पॉइंटेड आउट, दैट डेस्परेशन ऑफ वांटिंग टू चेंज योर सिचुएशन, दैट डेस्परेशन, बिकॉज हमारी देश में एंड वी केम फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड, हम बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से आते हैं एंड विद दोज लिमिटेड रिसोर्सेज तुमको सब कुछ लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड की टाइम. इट्स जस्ट दिस इज जस्ट समथिंग, जैसे अगर पैर तोड़वाया तो वेट आउट करना ही पड़ेगा बिफोर प्लेइंग फुटबॉल. It is one of those things. And that understanding might not solve your problem, but help in the waiting period or the cooling period. So it would be the same, but I would just say कि वो desperation को if you can just tag as temporary and see that okay, this is like for sure this is going to, I'm going to feel better again, creative again. Let me just have fun in this period. I'm getting a break. This is a break that I need. So just treat it as that. Like let it flow. ज़्यादा फोर्स करने वाला दिक्कत हो जाती है. सो मतलब कि थिंक ऑफ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस एंड नॉट यू वेस्टिंग टाइम, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड. मेरे को भी बहुत बार नॉट जस्ट कंटेंट में, हर काम में ऐसा लगता है कि इफ आई एम टेकिंग अ ब्रेक मे बी आई एम वेस्टिंग टाइम. 100%. वेरी नेचुरल टू फॉर समवन हु हैजंट लाइक, है ना. ग्रेट. एपिक क्वेश्चन. नेक्स्ट, डू यू एवर फील लाइक यू आर लिविंग फॉर कंटेंट इंस्टेड ऑफ लिविंग लाइफ? Damn. You didn't have to call me out like that, bro. इन फेजेस मेरे को लगता है कि मेरे साथ, मैं थोड़े से एक्सट्रीम्स में रहता हूँ इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, कि आई एम लिविंग फॉर कॉन्टेंट इन अ वे दैट आई नॉट कॉन्टेंट, आई वुड से आई एम लिविंग टू क्रिएट समथिंग. देर इज़ अ फेज दैट माई लाइफ इज आई वांट टू क्रिएट दिस. वो अभी उस टाइम पे मेरे को वही है दिमाग में, वो और कुछ भी नहीं हो रहा होता. एंड देन देर इज़ अ फेज वेर आई एम जस्ट डिटैच फ्रॉम कॉन्टेंट एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनीथिंग एट ऑल, और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं होता. लाइक आई वांट जस्ट बी इन अ मोमेंट. आई डोंट नो उसकी इंटीग्रेशन और बैलेंस कितना पॉसिबल है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव फिगर्ड आउट फॉर माई सेल्फ. सो आई डोंट नो इफ आई कैन एडवाइस ऑन हाउ टू स्ट्राइक दैट बैलेंस. बट आई वुड से दैट इवन इफ यू कैन, लाइक इफ यू आर जस्ट, if this is something that really gives you joy and it's you're passionate about, then this system also works out just fine. Ki you go here for a while and then you take a break. We sprint and rest and sprint and rest. Should we have a niche, or is it okay to be a diversified with videos for each audience type? Straight up answer, I have had this answer for 7 years now. मेरे साथ हुआ था, मैं ना स्टार्ट आउट कर रहा था, मतलब 5 साल हो गए थे उनको वीडियो बनाते हुए, एंड इट वॉज अराउंड दिस टाइम, आई वुड से 1 year बिफोर आई सॉर्ट ऑफ got known for making videos or famous हुआ. This is person who was like an important person in the industry asked me कि यार तू एक चीज़ क्यों नहीं पकड़ता, like just pick a niche, that's how you will double down and that's how you will grow. And even though that advice was right, like if you want to grow, you want to pick a niche and all of that, I feel I would, if I did that, it would be one of my biggest regrets today. As a creator who's done it, like I've been doing it for a while. मतलब 5 साल हो गया बनाते हुए एक चीज़,
now I can branch out into different things and do it because I have already branched out a little before I was famous. So I did a podcast, a vlog, comedy, did everything. मतलब हर जगह हाथ पैर मारे. एंड आई थिंक वो इतना ज़रूरी है किसी क्रिएटर के लिए, बिकॉज अगर तुम हाथ पैर नहीं मारोगे ना, तुम्हें इंटरेस्ट लेवल्स नहीं समझ आएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि what about this craft you actually like. Is it the writing? Is it the editing? Is it this part? Is it like talking to people? Is it the thought before an idea comes? Is it what is it about the whole process? And by doing all of this different niches करके, you get to know yourself better as a creator. If practically speaking, अगर तुम्हारा कुछ एक content piece काम कर रहा है, उस पर डबल डाउन करो 100%. लाइक उस पर डबल डाउन करो एंड लेट ऑडियंस रिएक्ट. इफ योर ऑडियंस इज रिएक्टिंग टू वन पार्ट ऑफ योर कॉन्टेंट, उस पर 100% डबल डाउन करो, बिकॉज यू वांट टू मेक अ लिविंग. बिकॉज एक बार वो कर लोगे, डबल डाउन करोगे, यू विल हैव सम मनी, यू विल हैव सम रिसोर्सेज, देन यू कैन ऑलवेज गो बैक टू अदर थिंग्स. And that has to be a maybe decision. you can think of doing other things if you doing other things does not compromise on the quantum of things that are working out वाली चीज़ें. हाँ, मतलब तुम अगर कॉन्स्टेंटली देखो रोज एक वीडियो डालनी है ऑफ समथिंग दैट इज वर्किंग आउट एंड तुझे पता है कि ये चल रही है, ये चीज़ फट रही है, वो डालते रहे. उसके साथ साथ अगर तेरे को कुछ और बनाना है तो लाइक दैट इज नॉट लाइक my Instagram page, my Instagram handle, if I'm putting one thing that is working out every day, मैं one day a vlog कुछ डाल रहा हूँ and it is working out, do you think कि अगर मैं suddenly cooking भी करने लग जाऊँ, मान ले कि मैं जिम का रोज़ डालता हूँ, रोज़ one video and it is working out, is blowing up, but I want to try cooking, do you think मैं अगर उसकी वीडियो भी डालने लग जाऊँगा without compromising on that consistency, would it affect? it will affect. But in the long term, it equals itself out, because you will lose followers जो proper gym वाले तुम्हारे कि followers ये अब होंगे, क्या कर रहा है? ये whatever. But in the long term, you will find a cooking audience. New audience, yeah. So with every new thing this is very interesting. Every new thing you try, you find people who are more similar to you. So let's say ये है Venn It's a diagram. positive sum game. It's a positive sum game if you do it for long term. And it's very healthy also, because you're not pressurized to make जिम कंटेंट एवरी डे. अगर ये जिम की ऑडियंस है, एक कुकिंग की ऑडियंस है, एक गेमिंग की ऑडियंस है, और ये, और तुम इन सबका इंटरसेक्शन हो, योर आइडियल केस सिनेरियो इज दैट तुम्हारी ऑडियंस इन सबका इंटरसेक्शन होगी. द ओनली वे यू फाइंड दैट ऑडियंस इज बाय पुटिंग दैट कंटेंट. ओनली वे, राइट? वो है ना, हम बात कर रहे थे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, फेदरवेट चैंपियन यूएफसी में, यूएफसी फाइटर है और उसका कुकिंग का यूट्यूब चैनल He's है. more famous as a chef. ऑस्ट्रेलिया में ही इज ब्लोन अप एज अ शेफ and not just as a UFC wo, which is crazy. Crazy है ना for someone. अब यार मतलब humans are multidimensional. We are not binary. तो हमारे interest तो बहुत होते हैं. Like it's जैसे तेरा है. Like it's not comedy that you like. You like a lot of things. जैसे तो अपने vlogs कर रहा है, and vlogs बनाने से ज़्यादा vlogs edit करना तेरे को ज़्यादा पसंद है, is what you have realized, which you never knew was the case. राइट आज से 2-3 महीने पहले तो उस चीज़ को ऑटोमेट करना चाहता था कि एडिटिंग कोई और कर दे. बट नाउ व्हेन यू आर डूइंग इट एंड यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दिस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन थिंग्स दैट इज पुटिंग ब्रेड ऑन योर प्लेट, ये तेरी सेल्फ फुलफिलमेंट भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, बिकॉज 100%. मज़ा आ रहा है काम करने में. विद ऑल द क्राउड दैट इज ऑलरेडी देयर ऑन द इंटरनेट नाउ, विद ऑल एवरीवन ट्राइंग टू बी कंटेंट क्रिएटर, डू यू थिंक देयर इज स्टिल स्कोप? Yes, 100%. Because Okay, before this, do you think it's easier or more difficult to be a creator, or it's the same than it's a 5 different years? kind of difficult. बहुत पहले, if your quality was really good, the chances of you being famous were much more. आज if your quantity is a lot more, your chances of being famous are more. So quantity over quality में quantity is winning today. Today, for sure. Like obviously अब बहुत सारे लोग क्वांटिटी में भी डाल रहे हैं, उसमें अब क्वालिटी का फिल्टर है, बट क्वांटिटी इज द बेस. क्वांटिटी हैज टू बी देयर फॉर यू टू बी फेमस. दैट्स द फर्स्ट. वो बहुत क्रिएटर्स है जो लाइक यू, बट क्वालिटी का यू सेइंग देयर इज अ थ्रेशोल्ड. देयर इज कि मतलब अच्छी क्वालिटी की तो डालनी है. नहीं, अच्छी क्वांटिटी तो डालनी है. हाउ बिग यू गेट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी. You're saying कि shit quality also. अगर तू 30 वीडियोस अ मंथ डाल रहा है, if you've sorted the mechanical part of it,
I'm saying, by the way, that's a very shitty way to work as a creator. I would say you will burn out and everything. मतलब I will give 100 disclaimers before that, but that's the way. अगर कोई कई लोग होते हैं ना who have a corporate mind, they want systems and everything. If someone can churn out 30 videos a day through AI or whatever, that person over time is going to get an audience. Because इतनी audience है यार, इतनी ज़्यादा audience है, and in India specifically the audience only going to expand. कितना है इंडिया के like internet users अभी like कितने ही है, कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज इंटरनेट यूजर? अभी स्टार्ट था ना 30-40%, 30% समथिंग लाइक दैट. I don't know, I haven't. मतलब डोंट कोट मी ऑन दैट, बट बहुत कम नंबर है द परसेंटेज ऑफ इंडियंस यूजिंग द इंटरनेट. इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज, एंड विद दैट द नंबर ऑफ क्रिएटर्स आर गोइंग टू इंक्रीज, बट ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी फॉर दोज क्रिएटर्स टू बी सीन will increase. So you're saying the pie is big enough for everyone to For eat out of it? For creators who work on their craft, who will actually work on their craft, and while keeping, like, it's a difficult algorithm to crack now, but like it's a different algorithm. मेरे को नहीं लगता कि ऐसे की है कि मतलब अब क्वांटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट. यार अब तुम बोलो कि आज सबके पास फोन है, फोन से कोई वीडियो बना सकता है. उस टाइम पे कैमरा से ही वीडियोस बनती थी. लाइक तुमको कैमरा चाहिए ही था, बैरियर ऑफ एंट्री इतना ऊपर था. सो हाउ कैन यू कंपेयर द टू? लाइक इट्स लाइक हो गया है, बट बैरियर ऑफ एंट्री इज वेरी स्मॉल, but you have a bigger audience. Bigger like pool to compete with. Compete with. So it's a different ball game, but easier to find an audience today than it was pehle. And if you do things right, if you're consistent and if you put the work, I think 100%. Yeah, मतलब मेरा थोड़ा bias भी है, but like with you also, like I've seen you grow, ठीक है, और obviously like we were always talking and thinking कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. बट तेरा बिगेस्ट वो तभी आया था जब तू कंसिस्टेंटली एक तरह का तूने कंटेंट डाल रहा था, एंड यू ओनली इम्प्रूव्ड ओवर टाइम. तो लाइक व्हाट्स योर इनसाइट, क्योंकि तूने स्टार्टिंग में करा था, लाइक तू यू आर अ न्यू क्रिएटर, लाइक क्या मतलब आई थिंक व्हाट वर्क्स इज डेफिनेटली क्वांटिटी. लाइक क्वांटिटी नीड्स टू बी देयर, कंसिस्टेंसी नीड टू बी देयर, बट व्हाट आई थिंक, ठीक है, कंसिस्टेंसी से एक अप्रोच तक तुम ले जाओगे, एक sort of audience बन जाएगी which is only there for your work. But I think because of the competition इतना ज़्यादा है and इतने ज़्यादा quantum में लोग, क्योंकि मैं जितनी मर्जी यूनिक चीज़ बना लूँ, maybe my output is unique, but that method is going to be similar. Because method तो उतने ही limited ही है ना, outputs depend करते हैं मेरी uniqueness पे. But इतने सारे वो methods हैं कि लोगों के पास बहुत सारे options हैं, तो मैं quantity से एक some amount of audience लेके आ जाऊँगा. But until unless I'm able to really put myself, unique voice तेरी जो है, मतलब कि my individuality, like I think today algorithm requires you to put more of your life on internet than it did. पहले तुम सिर्फ अपनी गाड़ी चलाते हुए वीडियो डाल के 0 से 100 इतने सेकंड में डाल रहा हूँ, हर वीडियो बना के तुम एक 100 के ऑडियंस बना लोगे. बट आज पीपल वांट्स टू नो हु द ड्राइवर इज, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. बिकॉज एक बंदा की गाड़ी चलाते हुए की वीडियो ब्लो अप करती है, 10 बंदे सेम वीडियो बनाने लगते हैं. I've seen this. मैंने जब अपनी ये वाली वीडियोस बनाने लगी थी, मेरे से पहले भी लोग करते थे, बट मेरे बाद सिमिलर टाइप की वीडियोस इतने लोगों ने बनानी शुरू कर दी. बिकॉज तेरी वीडियोस भी बहुत सारी ब्लो अप हो गई थी ना. तो लाइक तो एंड अब नाउ द ऑडियंस हैव ऑप्शन. तो बट द डिफरेंस आई थिंक होगा कि तुम कैसे इंडिविजुअल हो, अब तुम्हारी लाइकेबिलिटी एंड तुम क्या ऑल्सो लाइक फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू कैरी दिस, वो भी बहुत बड़ा मैटर होता है कि मतलब कई लोग जस्ट बिफोर द फिनिश लाइन भी गिव अप कर देते हैं. आई फील लाइक इट शुड ऑलवेज बी अ नाइस साइड गिग. इफ इट बिकम्स योर मेन गिग, ग्रेट, बट साइड गिग तो लाइक यू शुड कीप दिस एज योर साइड गिग बिकॉज there's no better side गिग. And I think like you can't just put your work out there, you need to put yourself out there. सिर्फ वर्क से it will remain a side gig, but for it to become a main gig you'll have to put your personality, some amount of personality it could be made up. मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर भाई, पुनीत सुपरस्टार a great example. He is not himself on the internet, it's a character उसने, but उस कैरेक्टर की पूरी इंडिविजुअलिटी, उसकी पूरी पर्सनैलिटी उसने इंटरनेट पे डाली हुई है. सो आई थिंक दैट इज नीडेड. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज कि लाइक ठीक है हमने बात कर ली कैसे करना है, कैसे क्या है, बट वन यू आर देयर हाउ डू यू सेपरेट योर सेल्फ वर्थ फ्रॉम नंबर्स. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम लाइक्स. This is my one of the big learnings. This was around 2 years into being known on the internet. You have to detach yourselves from likes. अगर
थोड़ा सा उससे थोड़ा सा सेपरेशन, बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा सेपरेशन कर लोगे कि तुमको जितना खुश होता है, जितना तुम खुश होते हो जब तुम्हारे वीडियो वायरल होती है, लाइक होता है, अगर उससे थोड़ा सा सेपरेट कर लोगे, देन proportionally you will detach yourself from the dislikes or the haters or कि वीडियो नहीं चली उससे भी. It's about But is it also like जो hate comments आते होंगे? I'm sure there are a lot of useless people on internet throwing यार shit हेट on कमेंट people. चल वो अलग कॉन्वर्सेशन भी है. एक ये देख, वन टॉपिक इज दैट Number of followers, number of views, I number think of comments. I'm not sure, but Naval said it the best. He said कि every time you get a like, every time someone says they like you indirectly on Instagram, you start building this image of yourself, which is a glass image. You're trying to build a character. I think Naval said it, yeah. You're trying to build a character with every compliment. Oh, I love that you're funny. I love your hair. I love your the way your body line. Whatever. Every time someone pays you a compliment, you're trying to build this. Not trying to. You're building this image in your head of yourself. And when someone says something bad or a video doesn't work, तब वो image जो glass image है वो shatter होने लग जाती है. And that's how it sort of works. And I love this framework because जितना मैं डिटैच होता हूँ ना कि ठीक है यार, चली बहुत सही है, वीडियो नहीं चली, इट्स ओके, आई अपलोड अनदर वीडियो, उतना मुझे कम बुरा लगता है when videos don't work. Because you can't let other people, you can't let people on the internet have that control over you कि where they decide who you are for yourself. वो बहुत मुश्किल हो जाती है. It's like just a normal, like in a normal company that you work. Like if you create a PPT and your boss doesn't like it, it's not the end. Like, है ना? It's not the end, yeah. You go back, create another deck, take feedback. Only that, because I think फर्क यहाँ पर ये आता है, because जब तुम कुछ बनाते हो, स्पेशली फॉर क्रिएटर्स जो बहुत दिल से बनाते हैं, जो they're not creating for an audience, they genuinely just enjoy making it so much. उनके लिए that piece of content is a part of themselves. It's especially people who have used their unique voice in that art form. किसी ने अपने पेरेंट्स की किसी बात पे फनी वीडियो बनाई है, या फिर किसी की कुछ भी बनाया है जो लाइफ फैशन बनाया है, because it's so unique, it's a part of you. So obviously when someone likes the content, you feel that they are liking you. They are liking the content. I like the outfit, और like मैं लाइक करा और आगे कर दिया, इससे ज़्यादा सोचा भी नहीं मैंने, और एक जोक देखा, सुना, फनी लगा, आगे कर दिया. वो तो उसी कंटेंट तक ही सीमित है. बट तुम्हारे लिए दिस पर्सन लाइक्स मी, यू नो, लाइक वाओ 1 लाख पीपल लाइक मी. आई थिंक वो डिस्टिंक्शन एक बार वो भी ज़रूरी होती है कि that's the biggest lie. You tell yourself, no, they don't. Personally मत लो. They don't like me. They like, I made something. They liked that thing. Doesn't say anything about me. अच्छा या बुरा. I think if that is a space you can come to, I think that's very helpful. Crazy. Yeah, I think that's very helpful and very important also, because especially when you are making videos for a long time, it's not working. Suddenly it starts working. Sudden dopamine. So every like, you celebrate that, like you do a hooray in your head. Right? Especially यार जब मैं तक ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं लाइक 23 साल की उम्र तक फेमस तो नहीं हुआ था, 23-24 साल की उम्र तक नहीं हुआ था. अगर मैं 18 में होता, माई माइंड वुड बी लाइक मैं अलग इंसान होता यार. आई एम सो ग्रेटफुल कि 5 साल मेरे को नहीं देखा किसी ने, एंड आई कुड वर्क ऑन माई वर्क. You could create without it being successful. हाँ, मतलब एक for the sake of it बना रहा था तू. 3 years into making videos मैंने छोड़ दिया था कि मैं कभी फेमस होऊंगा, मेरे को लाइक चल मजा आता है तो बनाता तो रहता ही हूँ. लाइक 3 years into गिव अप हो जाता है कि यार मैं आई डिडंट वांट टू लाइक स्टॉप मेकिंग वीडियोस, दैट्स अबाउट इट. एंड फॉर दोज 2 years जो मैंने बनाया विदाउट वांटिंग, लाइक विद गिविंग अप कि अब देखेगा कि नहीं देखेगा कोई, दैट्स वेयर आई फील लाइक आई गॉट दैट सेल्फ वर्थ दैट ठीक है, दिस stands on its own without people liking it or not liking it. I think if you can also sort of have that, I think it's a great place to be as a creator. Yeah. Because especially अब when जैसे तूने start of the episode में बोला था, either you are a creator, your friend is a creator, you're working with a creator, like you're just surrounded by them.
सो उस चीज़ में कंपटीशन भी इतना आ गया है, लाइक अ मिलियन फॉलोअर वाला क्रिएटर इज की लाइक मोर इम्पोर्टेंट देन 100K वाला. सो आई थिंक पीपल, इट्स वेरी इजी टू कंफ्यूज योर. जैसे पहले होता था ना कि लाइक यू नो इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर सैलरी अच्छा. with each other. It's for a reason. Because like same kind of work you're doing, I don't want you to know that you're getting paid more and he's getting paid less, because that will ultimately, अब इसके अंदर like it's very easy to understand that more numbers means more money that you might be getting, and so it's very easy for people to compare. जो वहाँ पे रोक, like it's for a reason. I don't have an opinion कि वो सही चीज़ है कि बुरी चीज़ है, pros and cons हैं, बट यहाँ पे हमारे हाथ में है वो कंट्रोल करना. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट वो कंपैरिजन भी ना आए और अपने नंबर से अपनी वर्थ भी. 100% यार, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है ना. लाइक फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट कितने ट्रांसपेरेंट कुछ है. दिख रहा है. कोई गाली भी दे रहा है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, सब देख रहे हैं कि लाइक इट्स लाइक तुम बाहर मतलब एक ऑडिटोरियम में खड़े हो और एक बंदा तुमको 100-200,000 लोगों के सामने गाली दे रहा है. उस टाइम पे तो वैसे फील होता है ना कि किसने गाली दी है. दैट्स व्हाई इट फील्स सो टेरिबल. क्रेजी. ओके, लास्ट ऐसे बड़े वाला क्वेश्चन एंड देन वील गो टू रैपिड फायर. वेरी एक्शनेबल थिंग, आई रियली लाइक, इट्स अ वेरी गुड क्यूट क्वेश्चन. हाउ डू यू प्लान योर कंटेंट? एनी सिस्टम, स्ट्रक्चर और अ कैलेंडर दैट हेल्प्स यू स्टे ऑन ट्रैक? मैं अब नहीं करता प्लान, मैं पहले करता था. बट कोई सिंपल सा तरीका एनीवन कैन यूज. I used the structure that I'm about to share in the last 3 years minus this year. उससे पहले preceding 3 साल में मैंने ये यूज़ किया था, and it has really worked for me, I would say, which is that मैं कॉमेडी स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, बट ट्राई टू एक्सट्रैपुलेट इट इनटू डिफरेंट वो, एंड आई थिंक यू कैन सॉर्ट ऑफ गाइड द कॉन्वर्सेशन दैट वे. फाइंड आउट योर IPs that work. Like work नहीं, IPs that are different and then that you feel कि ये इंटरेस्टिंग वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ. IPs क्या होता है? ओके, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था. IP क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थिंग दैट, बट हाउ टू नो दैट दिस इज एन IP? IP इतना कुछ नहीं है, वैसे बहुत कॉर्पोरेट टर्म है, कुछ नहीं कॉर्पोरेट टर्म है, तभी मैं कह रहा हूँ कि IP का simplify मतलब है करते कि एक बार. एक थ्रेड ऑफ कंटेंट, कि इस तरह का कंटेंट. फॉर एग्जांपल मेरा एक कैरेक्टर है, इट्स लाइक अ प्लेलिस्ट. इट्स लाइक अ प्लेलिस्ट. हाँ. इट्स लाइक अ प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट, ठीक है. अब तुमने वो प्लेलिस्ट मार्क कर ली कि मेरा एक कैरेक्टर की ये है, रिम्पी गुरी की एक प्लेलिस्ट है, एक है मेरा कैरेक्टर तेजस मेहुल, उसकी ये है, उसकी ऐसे ना मेरी एक देसी हॉगवर्ड्स वाली है. तो ये 7-8 लिस्ट आउट कर लो, जो भी है. मैं 7-8 है, किसी की 3 है, किसी की 2 हैं, एक है, जितनी भी है वो लिस्ट आउट कर लो. ठीक है. एंड देन यू वांट टू सी पहले वाला अपना सारा देख के एनालिटिकली किस पे कैसा रिस्पॉन्स आता है. just sorry to interrupt, but how from what I'm understanding is how to understand IPs. कि मेरे को लगता है कि IP जैसी चीज़ और ये कॉन्वर्सेशन भी ना बहुत लेट इन द गेम लोग लेके आते हैं. स्टार्टिंग में तो हर हाथ पैर मार रहे हैं, हर तरह की वीडियो बना रहे हैं, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रैक कि किस किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो. एंड जो तुम्हारा टॉप कंटेंट चल रहा है, या तो चल रहा है या चल नहीं रहा लेकिन मज़ा आ रहा है, ये टॉप है, उनको लिस्ट डाउन कर दो और उन पे मल्टीपल ज़रूर बनाओ. 100%. hence you able to cut down and narrow down कि अच्छा ये मेरे फाइनल तरीके का काम है जो मैं बनाता हूँ. तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 चीज़ें बनाई, जैसे तो बहुत सी बोला कि एक चलती है पर इतना मज़ा नहीं आता पर चलती है. एक है मज़ा आता है पर चलती नहीं है. एक है मज़ा आता है चलती भी है. ठीक है, 3 है. और जो 4th है कि मज़ा नहीं आता और चलती भी नहीं है, उसको तो निकाल दो. वो तो पॉइंट क्यों ही कर रहे हो. ठीक है. तो जिसमें जो चलती है और मज़ा नहीं आता, उसमें से तुमको इनसाइट्स निकालनी है कि भाई ये चलता है, लाइक व्हाट अबाउट दिस वर्क्स. और ये नहीं है कि यूनिवर्सल नहीं है, ये इट्स अबाउट कि यू सेड इट इन अ सर्टन वे, समथिंग अबाउट दिस. मे बी इट्स योर वेयर यू कम फ्रॉम, योर कोलोकियलनेस, कि अगर तुम मराठी हो, पंजाबी हो, मे बी दैट्स द एस्पेक्ट दैट्स वर्किंग फॉर देम. और मे बी it's the relatability or maybe the dark humor, whatever it is of that, try to extract that, or and try to inculcate that in different IPs. You want as many IPs, different IPs to work simultaneously, right? Because अगर वो केस है ना, तो तुम्हारा content stale नहीं होगा जल्दी. Because then तुम एक हफ्ते में सेम तरह की 4 वीडियोस नहीं बना रहे, तुम एक हफ्ते में 3 तरह की एक वीडियो बना रहे हो, 2 वीडियोस बना रहे हो.
तो तुमको हर एक हफ्ते बाद डालना है वो सेम आईपी का कंटेंट. सो दैट रियली हेल्प्स. ये तो होगा कि कंटेंट प्लान कैसे करना है. जो मिनी स्ट्रक्चर है, जो थोड़ा ज़्यादा डे टाइम वर्क है, विच इज़ राइटिंग, एडिटिंग एंड शूटिंग वाला पार्ट. यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन सी एक बार थोड़ा सा एनालाइज करके कि यार मेरी इन वीडियोस में ये है कॉमन थीम. लेट्स से उनकी ड्यूरेशन इतनी है, 50 सेकेंड की वीडियोस यूजुअली चल रही है, 1.5 मिनट की नहीं चल रही है, 1.5 मिनट की चल रही है, 50 की नहीं चल रही. तो यू वाना, पैटर्न, हाँ, थोड़ा पैटर्न रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है. देन यू वाना सी कि अच्छा अगर मेरे ऐसे प्रेमिस पे चलते हैं, मे बी आई कैन यूज़ अ सिमिलर प्रेमिस बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. ड्रंक डैड्स पे वीडियो बनाई मैंने, मेरे ड्रंक डैड्स वाला चला, बहुत चला. मे बी आई कैन यूज द ड्रंकनेस इन विद डिफरेंट कैरेक्टर एंड सी हाउ दैट वर्क्स. मे बी आई कैन यूज द वोल्डेमॉर्ट एंड डम्बलडोर एंड सी हाउ दैट वर्क्स. ठीक है. तो यू वांट पिक कि अच्छा ये आजकल पल्स ये है, तो ये चलता है. तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग वे. व्हाट ऑल्सो वर्क्स इज दैट अगर तुम राइटिंग प्रोसेस में 3-4 निकाल लो. ऑल्सो प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है मैं परफॉर्मर सही हूँ, मैं इम्प्रोवाइज अच्छा कर लेता हूँ. लाइक आई एम अ ग्रेट इम्प्रोवाइजर. मैं जो स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंचुअली. हाँ. ये तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये मेरी क्या ये strength तो है. मुझे जिसमें मतलब एफर्ट नहीं लगता और रिटर्न मैक्सिमम कम्स इजी टू मी. और रिटर्न मैक्सिमम है. तो जैसे मेरा तरीका भी है, मैं पॉइंटर्स लिखता हूँ और उसके बाद मैं इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ जब तक मुझे जेन्युइनली हंसी नहीं आ रही होती. वो मेरा सॉर्ट ऑफ माइंडसेट है. कईयों के लिए राइटिंग एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड है. सो फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड ऑप्टिमाइज इट फॉर योर पैटर्न. वो अपने लिए एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्रिएटिव चीज़ें का कोई लाइक सबके लिए सेम चीज़ नहीं होगी. हाँ, इट इज़ योर ओन वे टू इट. हाँ. तो जैसे इम्प्रोवाइज अगर सबसे ईजी है तुम्हारे लिए, समवन लाइक मी जिसको इम्प्रोवाइज करना ईजी लगता है, तो राइटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओ. यू कैन यूज़ दैट टाइम इन राइटिंग. यू कैन बिल्ड इंटरेस्टिंग प्रेमिसेस. थॉट ज़्यादा एफर्ट है बट वर्थ द एफर्ट है राइटिंग. एंड देन तुम शूट करते करते ऊपर नीचे करो उसको, थोड़ा सा वो सब करो. एंड देन एडिटिंग इज़ अ वेरी स्किल बेस्ड थिंग. एडिटिंग तो सीखनी पड़ेगी तुम्हें. एडिटिंग में तुमको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पर कट्स कैसे जो लगते हैं, कैसे बेटर रहते हैं. ऑन द जॉब लर्निंग भी बहुत है. लाइक कर करके तुम्हें समझ आ जाएगा व्हाट आई एम. एंड द बेस्ट थिंग वुड बी अगर तुम जितना ज़्यादा कंटेंट बना सकते हो उतना बनाओ, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल लर्न अबाउट योर कंटेंट एंड इट वर्किंग ऑन रील. जितना ज़्यादा इनपुट आएगा फ्रॉम इनसाइट आएगी फ्रॉम द वीडियोज दैट यू ऑलरेडी मेड, उतना बेटर कंटेंट यू विल बी एबल टू मेक आगे. जस्ट टू एंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये तो तरीका हो गया कि किस तरह का स्ट्रक्चर, बट डू यू थिंक हैविंग अ स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट? आई एम जस्ट थिंकिंग कोई बैठा है कह रहा है कि मेरे तो दिमाग में ये क्वेश्चन ही नहीं आया, मैंने सोचा ही नहीं कभी स्ट्रक्चर भी होना चाहिए कि नहीं. देख नहीं है, जैसे गोविंद के लिए स्ट्रक्चर नहीं काम करता, मेरे लिए बहुत करता है. वो भी पर्सनल चीज़ है कि किस क्रिएटर को किस तरह का. गोविंद को आता ही तब है जब उसको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है ज़िंदगी में, बैठा हुआ फ़ोन निकाला और कुछ मीम बना दिया. वो गोविंद का तरीका है. आई थिंक वो फोर्स करना स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो एक्चुअली डेट्रीमेंटल. एंड समटाइम्स स्ट्रक्चर हेल्प फॉर सम पीपल, फॉर पीपल लाइक मी. सो वही है कि मतलब कि वरना स्ट्रक्चर जैसी बातें सोच के ना लोगों को लगता है कि ओके दिस इज़ द वे. पर हाँ, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए. ट्राई करके देखो, अगर होता है सही है, नहीं होता तो फिर आई मीन रैपिड फायर. परफेक्ट. लेट्स गो. Okay. Is having an agency important? Having a good team is important because a good team lets you focus on the creative part and they take away all the painful stuff, negotiation, all that bullshit. So it's good. If you find an agency which helps creator of your size do well, try to sign with that agency and not an agency which is objectively good. But also having an agency does not mark a flag in the success journey. मतलब it's helpful for sure, but depends on the kind of like हाँ. But ऐसा नहीं है कि तुम उसके बिना कर नहीं सकते. If you have a good friend who can manage you, ऐसे भी बहुत सारे creators हैं जिनका कोई दोस्त उनको manage करता है and they do really well. Okay, for beginners, free video and photo editing softwares. In short for phone editing and DaVinci Resolve for laptop editing. If you have to just sum it up, 3 key tips to someone who's just starting. Be consistent.
be shameless. Try to work on the craft, the skill side of it, while you're being consistent. Try to improve the skill part of it. Perfect. Is it better to start with trends or original ideas? Original ideas, sprinkle trends every now and then, and try to use the trends in your unique voice, because those are the trends that go viral for sure. If there's a trend going on and you try to actually genuinely, like, it's a twist that only you could have used, that will go viral. Crazy. Should you focus on one platform or be everywhere? To start with, I think one platform is nice. It's if you have the bandwidth, you can upload on every short form content. It's good. It's like no brainer. If aliens asked you to show them one video of yours, which would you pick? Dumbledore and Voldemort. Desi Dumbledore, Voldemort वाली. भाई मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक बता दो फनी वाला जो यूज करते हो. Brother, some secrets are kept secrets. Which video was your first video? I think 2014 में मैंने और गोविंद ने एक वीडियो बनाई थी ऋषभ के साथ घर पे बैठे हुए अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समथिंग. हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था तो हमने बनाई थी समथिंग रैंडम. दैट वीडियो डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट फॉर गुड रीजंस. आई डिलीटेड इट. What's the wildest DM you've received after going viral? I can answer that. क्या? Come be a part of Donkey. Yeah, that's quite wild. That is wild. कि डंकी में मरेगा. मरूंगा. Can this still be done as full time? Yes, 100%, 100,000%. Yes. Can you tell about agencies that bring work or manage people? What is the benefit? Yeah, I've worked with people at Creator 18, जो अभी agency है, for a very long time, for around 5-7 years. So they're really well. They do really well. Then there are other agencies like iPlex and Collective, and Collective is, I think, better for bigger creators. But for small creator, iPlex and Creator 18 and Hype also is pretty decent. Some book recommendations for creators and creativity in general. Book of Simple Living by Ruskin Bond. Is it okay to pretend to like a brand just for the bag? Yeah. I mean, अगर तुमको, if you dislike a brand, then don't like it. If you're neutral towards a brand, then you can like it. I guess that's my sort of thesis. Any tips, anything for a very, very lazy girl? Start a podcast. What's something about being a creator nobody warns you about? It's emotionally draining, and it's really hard to it's really hard to manage expectations of strangers. Okay, that's it. All right. A small creator segment of our show. Yeah. Is fun. Next time हम corporate segment करेंगे where Jatin will answer and I will ask him questions. But it's a fun episode. If you have more questions, please feel free to drop them down in the comment section. And if you're listening to this on audio only platform like Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, just give us a 5-star right now, and you'll be a creative person and an epic content creator. Yeah. And Vishnu will specifically write a book just for you. Just for you, with all my love. Thanks for listening. I hope you found value in this conversation. If you did, please let us know. We would love to hear from you. It'll be lovely.